Bismillahirrahmanirrahim. Maxwell-Boltzmann distribution function. Maxwell-Boltzmann distribution function is a probability distribution that was given the names after the scientists James Clerk Maxwell and Ludwig Boltzmann. It was very first successful effort was to calculate the energy and velocity distribution of an ideal gas particles that were enclosed in a box, and the particles are assumed to be in thermodynamic equilibrium and their energies follows Maxwell-Boltzmann statistics. This distribution can be applied on classical, identical and distinguishable particles. What we are going to do in this lecture, we are going to derive the Maxwell-Boltzmann distribution function. Then with the help of this function, we will find the relationship for finding the number of particles in the energy range, let from E to E plus dE, and their total energy and average energy and specific heat capacity at constant volume. So we are going to the first part of today's lecture, that is the derivation of Maxwell-Boltzmann distribution function. Let we have an ideal gas. It contains n number of identical and distinguishable particles in volume V. We have to find the energy distribution of these particles that were enclosed in a container of volume V, and there are n number of classical, identical, distinguishable particles in it. Let we apply the two constants on our assumptions. First constant is the total number of particles in the system is constant, means n will be equal to constant, and when we will apply the derivative on this n, we will get answer as 0. Second constant is the total energy of the system is constant. So total number of particles are constant and total energy of the system is constant. We know that how to find the microstates of such a classical particles. So we have already know the formula to calculate the microstates of classical particles, that is omega is equal to n factorial product gi raised to ni over ni factorial. Taking logarithm on both sides, log omega is equal to log of n factorial plus log and gi raised to n over ni factorial. Here the symbol is changed, and we have separated gi and ni, so we change the sign of the product into the summation. तो नोमिनेटर के अंदर जी आई है, तो इनकी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एन आई है और इनकी वैल्यूज़ को भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसको हमने अलग अलग कर लिया, प्रोडक्ट को इसमें जी आई अलग कर लिया और एन आई अलग कर लिया. सो इसका जो सिंबल है प्रोडक्ट वाला वो समेशन के अंदर हमने सॉल्व करते हैं. लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल प्लस सिग्मा. ये लॉग का एक फार्मूला होता है लॉग ऑफ ए ओवर बी, तो इसका फार्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी. सो यहाँ पे जो लॉग ऑफ ए ओवर बी था जी आई, लॉग ऑफ जी आई रेज टू एन आई और माइनस लॉग ऑफ एन आई. लॉग का फार्मूला है लॉग ऑफ एम ओवर एन, वो यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, दैट इज़ लॉग एम माइनस लॉग एन. खोल लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर एक लॉग का फार्मूला होता है लॉग ऑफ एम रेज टू एन, तो देन जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल प्लस समेशन. ये एन आई जो है, जो इसकी पावर थी वो पहले आ गई, और एन आई और लॉग ऑफ जी आई और माइनस जो है वही ऊपर वाला जो टर्म है वो आ जाएगी. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लॉग ऑफ ओमेगा की 3 टर्म्स हैं. ये एक पहली टर्म है लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल, और ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है. अगर आप देखें कि पहली और थर्ड टर्म के अंदर जो है फैक्टोरियल आ रहा है, तो हमने इस फैक्टोरियल को रिप्लेस करना है ताकि हमें कैलकुलेशन के अंदर आसानी हो जाए. तो इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन. तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन हम पहली और तीसरी टर्म के ऊपर लगाएंगे तो फैक्टोरियल से हमारी जान छूट जाएगी. सो लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल की जगह हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन लॉग ऑफ एन माइनस एन. तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल को एन लॉग ऑफ एन माइनस एन,
और जो थर्ड टर्म थी इसके अंदर log ऑफ एन आई फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा एन आई log ऑफ एन आई माइनस एन आई। ये स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन हमने यूज़ की है, पहली और तीसरी टर्म के ऊपर लगा दी। सेकंड टर्म हमारी एज इट इज़ थी, हमने इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया, ये ब्रैकेट लगी हुई थी, माइनस का साइन था, हमने इसको ओपन कर लिया, ये माइनस टर्म होगी और ये प्लस होगी। अब हमने इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट करना है, हमने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एन आई। पार्शल और पार्शल एन आई हमने दोनों साइडों पे कर लेना है, दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एन आई। पार्शल एन आई लॉग ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू पार्शल एन आई। इसके अंदर ये सारे टर्म जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। और जब मैंने एन आई के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है, तो पहली इस टर्म के अंदर और ये जो दूसरी टर्म है इसके अंदर एन आई मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका जो आंसर है वो ज़ीरो हो जाएगा। और वो मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये ज़ीरो, इसका आंसर ज़ीरो। और यहाँ पर जब मैंने इसका डेरिवेटिव एन आई के लिहाज से लिया तो log ऑफ जी आई तो कांस्टेंट था, वो बाहर रह गया और एन आई की वैल्यू 1 आ गई, लिहाजा सिग्मा log ऑफ जी आई हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म है माइनस और एन आई log ऑफ एन आई। अब मैं देखूँ तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं और मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला जो है वो लगेगा। प्रोडक्ट फार्मूला में एन आई जो है पहली टर्म होगी, log ऑफ एन आई जो है वो दूसरी टर्म होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लेते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव log ऑफ एन आई का डेरिवेटिव 1/n आई है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन है जी log ऑफ एन आई और पहले का डेरिवेटिव एन आई का डेरिवेटिव एन आई के लिहाज से ही वो 1 हो गया, प्लस और ये जो एन आई है इसका डेरिवेटिव एन आई से लिया जा रहा है, तो आंसर जो है वो 1 है। हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो पार्शल एन आई log ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ये 0 0 है, ये कट जाएगा और ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट है, ये माइनस आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, -1 हो जाएगा और ये प्लस था और यहाँ पे माइनस का निशान आ गया और ये +1 है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 और 1 आपस में कट जाता है, तो ये log ऑफ एन आई इज़ इक्वल टू log ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू सिग्मा log ऑफ जी आई माइनस log ऑफ सिग्मा log ऑफ एन आई। ये याद रखना है, जहाँ पर आई आ रहा है वहाँ पर आपने समेशन का निशान जो है वो लगाना है लाजमी तौर पे। फिर इसमें हमने मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए वी विल यूज़ लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये इक्वेशन इसकी यहाँ पर लिखी हुई है, पार्शल एन आई log ऑफ ओमेगा माइनस एल्फ़ा पार्शल एन आई सिग्मा एम आई माइनस बीटा पार्शल एन आई और सिग्मा एन आई ई आई इज इक्वल टू 0। ये एजुकेशन है, ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन है और मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। log ऑफ ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, इसकी जो पहली टर्म है, जस्ट पहली टर्म के अंदर पार्शल एन आई log ऑफ ओमेगा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम इसकी जो वैल्यू है वो वहाँ पर लिख लेंगे और बाकी टर्म जो है वो एज इट इज़ आएगी। यहाँ पर हमने लिख लिया समेशन log ऑफ जी आई माइनस समेशन log ऑफ एन आई माइनस एल्फ़ा, एन आई का डेरिवेटिव एन आई से लिया तो 1 आंसर हो गया अल्फ़ा इंटू 1, और इसी तरह एन आई का एन आई से जो डेरिवेटिव है वो 1 है और बाकी ये इसके अंदर कांस्टेंट है ई आई, वो मैंने बाहर रख लिया, तो बीटा ई आई। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये सिंप्लीफाई हो गई है, log ऑफ जी आई माइनस log ऑफ एन आई माइनस एल्फ़ा माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू 0। फिर मैंने जो समेशन वाली टर्म्स हैं उनका मैंने एक साइड पे कर दिया, बाकी मेरे पास रह गया माइनस एल्फ़ा माइनस बीटा ई आई, और जो समेशन वाली टर्म्स हैं वो log ऑफ एन आई माइनस log ऑफ जी आई हैं, और दोनों log हैं और माइनस हो रहे हैं, तो log m माइनस n log n माइनस log m, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो log ऑफ m ओवर n है, तो log n i ओवर जी आई, log n i ओवर जी आई। यहाँ पे मैंने इसका एंटी लॉग ले लिया दोनों तरफ, और एंटी लॉग लेने से मेरे पास आ गया n i ओवर जी आई इज़ इक्वल टू ई रेज टू माइनस एल्फ़ा इंटू ई रेज टू माइनस बीटा ई आई। और ये जो एन आई और बी आई है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको स्मॉल एफ के साथ डिनोट कर दिया, और ये आ गया ई रेज टू माइनस एल्फ़ा ई रेज टू माइनस बीटा ई आई। Since the particles हैं वो क्लासिकल्स हैं, since the particles are classical, so the above equation is
converted into the Maxwell-Boltzmann distribution function as FMB is equal to e raised to minus alpha into e raised to minus beta EI. Now we will calculate the value of e raised to alpha and we will put in this equation and we will find the final form of Maxwell-Boltzmann distribution function. So the final form is displayed here. FMB is equal to n over v beta h square over 2m pi raised to 3 by 2 e raised to minus beta e. Just when we replace the value of e raised to minus alpha, we will get its final form. This is the value of e raised to minus alpha, and when we will put this value, we will get this final expression for Maxwell-Boltzmann distribution function. Now we are going to calculate the value of e raised to minus alpha. So I am writing again the previous equation, that was ni over gi over e raised to minus alpha into e raised to minus beta ei. So I have written this equation again, and then I have simplified this equation, and gi is the denominator and we will be and gi is the denominator and it will go on the other side in the form of the products. So ni is equal to gi e raised to minus alpha e raised to minus beta, or sigma ni, this is sum of all the particles, this is capital N. तो कैपिटल एन हमारे पास आ जाएगा, ये समेशन है जी आई ई रेज टू माइनस अल्फ़ा ई रेज टू माइनस बीटा ई आई, और यहाँ से हम फाइंड करेंगे ई रेज टू माइनस अल्फ़ा, क्योंकि यही हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ई रेज टू अल्फ़ा एक तरफ रह जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ आ गई हैं। तो ये है जी एन ओवर समेशन जी आई ई रेज टू माइनस बीटा ई आई। सो अब हम इस इक्वेशन के अंदर जी आई की वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द पार्टिकल्स इनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम। ये जी आई की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करके ई रेज टू माइनस अल्फ़ा की फाइनल वैल्यू गेट करेंगे। द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द पार्टिकल इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी इन द एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस टी, और जी आई का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, या जी ई का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो इसकी डेरिवेशन की जा सकती है, और ये है जी 2 पाई वी ओवर एच क्यूब 2m रेज टू 3 बाई 2 ई रेज टू हाफ डी ई। यहाँ पर वी जो है वॉल्यूम है कंटेनर का, और एच टैंक्स कांस्टेंट है, m इज़ द मास ऑफ द ईच पार्टिकल है, और ई जो है एनर्जी ऑफ द ईच पार्टिकल है। जी आई की वैल्यू जो कि इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी थी हमने, तो हमारे पास जी आई की वैल्यू आ गई है, तो हमने जी आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो ई रेज टू माइनस अल्फ़ा एन है ओवर जी आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो जी आई की वैल्यू है, और जी आई की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई वी एच क्यूब और 2m, और उसके बाद इंटीग्रल है, जी आई की वैल्यू है 2 पाई वी ओवर एच क्यूब 2m रेज टू 3 बाई 2, और इंटीग्रल ई रेज टू हाफ ई रेज टू माइनस बीटा ई, यहाँ पे है समेशन है, यहाँ जो समेशन का साइन था वो इंटीग्रल के साइन में कन्वर्ट हो गया है। तो जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी उनको हमने अलहदा कर लिया है, और जो इंटीग्रल के अंदर ई के साथ डिपेंडेंट वैल्यूज़ थी उनको हमने अलहदा कर लिया, इंटीग्रल के अंदर लिख लिया। तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई वी ओवर एच क्यूब 2m रेज टू 3 बाई 2, ये कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर कर लिया, बाकी इंटीग्रल के अंदर चीज़ें आ गई। ये जो इंटीग्रल है इसको हमने सेपरेट कर लिया है, इसके अलहदा से हम वैल्यू कैलकुलेट करके फिर दोबारा इस ई रेज टू माइनस अल्फ़ा की इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। सो मैंने ये इंटीग्रल अलहदा ले दिया, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू हाफ ई रेज टू माइनस बीटा ई डी। यहाँ मैंने बीटा ई जो यहाँ प्रोडक्ट में था इसको मैंने एक्स पुट कर लिया, ये एक्स है, और जो ई है यहाँ पर ई मुझे नज़र आ रहा है, तो ई यहाँ से बन जाएगा एक्स ओवर बीटा, और मुझे यहाँ पर डी ई भी नज़र आ रहा है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये आ जाएगा डी ई डी एक्स ओवर बीटा, चूँकि बीटा कांस्टेंट है और एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा। अब इस इंटीग्रल के अंदर मैंने रिप्लेस कर देना है, जहाँ पर बीटा ई है उसको मैंने जस्ट
एक्स के साथ रिप्लेस कर देना है। ई रेज टू हाफ ये वैसे ही है, कांस्टेंट है। ई रेज टू माइनस बीटा, ई की जगह मैंने ई रेज टू, देखिए ई रेज टू हाफ था, वो ई की जगह मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ई की जो वैल्यू है वो एक्स ओवर बीटा है, तो ई की जगह एक्स ओवर बीटा और इसकी पावर जो है वो हाफ है, और ई रेज टू माइनस बीटा ई है। बीटा ई की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया और डी ई जगह डी एक्स ओवर बीटा पुट कर दिया। सो इसको मैं थोड़ा सा हल कर लेता हूँ। बीटा चूँकि कांस्टेंट है और इसकी पावर 1/2 है, और यहाँ पर बीटा जो है वो 1 है। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 1 + 1/2 ये 3/2 होता है, और फिर डिनोमिनेटर में है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। तो मैंने इसको इंटीग्रल से बाहर कर लिया और बीटा की वैल्यू जो है 3/2 है। बाकी इंटीग्रल के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक्स रह गया था और इसकी वैल्यू हाफ है, और ई रेज टू माइनस एक्स है और डी एक्स है। और अगर हम देखें तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, और इस डेफिनेट इंटीग्रल फिक्स इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि पाई का स्क्वायर रूट ओवर 2 इसकी वैल्यू होती है। तो वो यहाँ हमने पुट कर देना है, तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो आ जानी है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। इस इंटीग्रल की वैल्यू को जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ई रेज टू माइनस अल्फ़ा वाली इक्वेशन, उसके अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सो ई रेज टू माइनस अल्फ़ा जो है वो है जी एन ओवर दिस थिंग, और यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, दैट इज़ 1 ओवर बीटा रेज टू 3/2 और पाई का जज़र बटा 2, ये इसकी वैल्यू थी, वो हमने यहाँ पर ले ली है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, एन तो ऊपर है और ये जो टर्म है वो नीचे है, और इसके अंदर बीटा भी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वी नीचे और 2πh। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो टर्म है ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, n ओवर वी बीटा h स्क्वायर ओवर 2m पाई रेज टू 3/2। अब यही जो ई रेज टू माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है, ये पीछे जो हमने बेसिक इक्वेशन डिराइव की थी उसके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो बेसिक इक्वेशन थी वो थी ई रेज टू माइनस अल्फ़ा और ई रेज टू माइनस बीटा ई आई, और ई रेज टू माइनस अल्फ़ा की वैल्यू अब हमने कैलकुलेट कर ली है, वो निकली है n ओवर वी बीटा h स्क्वायर ओवर 2m पाई रेज टू 3/2 और ई रेज टू माइनस बीटा ई आई। सो इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं इन द एनर्जी रेंज ई प्लस डी ई। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एन ई डी ई इन द एनर्जी रेंज ई प्लस ई टू ई प्लस डी ई। इसका जो फार्मूला है वो ये होता है कि एन ई डी ई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इनटू जी ई डी। एफ फर्मी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, एन ओवर वी बीटा एच स्क्वायर ओवर 2m पाई रेज टू 3/2 ई रेज टू माइनस बीटा ई। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, और इसके बाद जी ई डी ई की वैल्यू नंबर ऑफ़ स्टेट्स की जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी। लास्ट इक्वेशन हमने लिखी थी वहाँ से हमने इसकी वैल्यू ली, और वो है जी 2πv ओवर h क्यूब 2m रेज टू 3/2 ई रेज टू हाफ और डी ई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं देखता हूँ कि जो v है वो v से कट जाएगा, और यहाँ पर h स्क्वायर है और h स्क्वायर की 3/2 है तो 2 आपस में कट जाएगा। बाकी h क्यूब है तो h क्यूब नीचे भी खड़ा है तो वो भी आपस में कट जाएगा। 2m यहाँ से कट जाएगा, 2m यहाँ से कट जाएगा, और बाकी चीज़ें बच जाएंगी। यहाँ हमने देखा है कि जो v की वैल्यू है और h की और 2m की वैल्यू है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, और इसकी जो फाइनल फॉर्म है एन ई डी ई की नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन एनर्जी रेंज, वो हमने फाइंड कर ली है। 2πn 1 ओवर पाई के टी रेज टू 3/2 ई रेज टू हाफ और ई रेज टू माइनस बीटा ई डी ई, और के इसके अंदर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना। हमने फाइंड करना है टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ई इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई एन ई डी ई। जो एन ई डी है टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को एक पार्टिकल की एनर्जी से मल्टीप्लाई करके सब की एनर्जीज़ को हम सम अप कर लेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे, तो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा। तो एन ई डी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू हम बाहर ले लेते हैं, और
जो डिपेंडेंट हैं वैल्यूज़ हैं इंटीग्रल के ऊपर, एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, उनको हम बीच में लेके आते हैं इंटीग्रेशन के बाद। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ को इंटीग्रेशन के से पहले लिख लिया और बाकी इंटीग्रल हमारे पास रह गया। ये जो इंटीग्रल है इसको हमने कंसिडर करना है, जैसे हमने पहले काम किया था। तो इसकी हम डेफिनेट वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और उस डेफिनेट वैल्यू को फिर इस एनर्जी की इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास आ जाएगी। इसके अंदर मैंने देखा कि ई की जो पावर है वो बीटा ई है, तो बीटा ई को मैंने कांस्टेंट, बीटा ई को मैंने एक वेरिएबल एक्स के तौर पे पुट कर लिया और फिर यहाँ से मैंने ई ले लिया, तो यहाँ से जो ई बनता है वो एक्स और बीटा है। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर डी ई भी मौजूद है, तो यहाँ पर इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया डी ई, और यहाँ पर ये डी एक्स हो जाएगा और बीटा जो है वो कांस्टेंट है। सो अब मैंने इसको रिप्लेस कर लिया, ये जो वैल्यूज़ हैं रिप्लेसमेंट वाली, उसके मुताबिक ई को मैंने पुट कर दिया एक्स और बीटा के हिसाब से, और जो बीटा ई है ये एक्स हो जाएगा और डी ई जो है वो डी एक्स और बीटा है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 1/बीटा रेज़ टू 5/2। यहाँ पर देखें बीटा की वैल्यू 3/2 है, यहाँ पर बीटा की वैल्यू 1 है, 1 + 3/2 ये 5/2 होता है, तो बीटा की वैल्यू 5/2 है। बाकी चीज़ें इंटीग्रल के अंदर रह जाएंगी, 0 to ∞ x रेज़ टू 3/2 e रेज़ टू -x dx। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल बन गया ये वाला, और इस डेफिनेट इंटीग्रल की एक फ़िक्स वैल्यू होती है, ये है इसकी फ़िक्स वैल्यू, और वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो हमारे पास इस इंटीग्रल की जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं, और इसके अंदर बीटा था तो बीटा को मैंने के बी टी से रिप्लेस कर लिया, या बीटा जो है 1/kBt होता है, या 1/kt होता है, तो इसको पुट कर लिया तो मेरे पास जो है वो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। ये इंटीग्रल को हमने अलहदा किया था, कंसिडर किया था, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करना थी, वो हमने वैल्यू इसकी फ़ाइंड कर ली है। तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पर एनर्जी की उस इक्वेशन के अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट कर लिया है। ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है, टोटल KT रेज़ टू 5/2 और 3/4 पाई का जज़र, ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दिए। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर पाई और KT की वैल्यू है सिंपली एक दूसरे के साथ कट आउट हो जाती है, और बाकी मेरे पास जो है वो सिंपल रह जाता है 3/2 NKT। और फिर अगर मैंने इसकी एवरेज वैल्यूज़ फाइंड करनी है पार्टिकल की, तो एवरेज वैल्यू जो है वो E/n है। टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी, और वो है जी 3/2 और KT। और फिर अगर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला जो है पहले हमने डिराइव किया हुआ है कि CV = पार्शल U और पार्शल T, और V जो है वॉल्यूम उसका जो है वो फिक्स है या कांस्टेंट है, तो U जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है या फिर इसकी टोटल एनर्जी है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो टोटल एनर्जी है वो उसका हमने फार्मूला जो है वो फाइंड किया हुआ है, वो है जी 3/2 NKT। तो पार्शल T 3/2 NKT, इसका डेरिवेटिव T के लिहाज से लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3/2 NK आ गया। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमने फाइंड कर ली है, और ये इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम देखें तो इसकी दो कर्व्स आपको नज़र आ रही हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर एनर्जी है। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो एक वार्मर सैंपल और एक कोल्डर सैंपल के दरमियान पाई जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।